Good morning, children. Today I will explain you a new chapter, the noun gender. It is very common topic, and it is most important to know all this information because we can use it in our day-to-day life. Okay, it is very important. Why? Because we can identify which noun we call masculine and which word we can call feminine, and which one is called neuter, and how many words are in common gender. So basically in English grammar there are four type of gender: masculine gender, that is represent as a male member; feminine gender, that is represent female member; and common gender, that is represent both masculine and feminine; and the last one is neuter gender. Neuter gender is represent the base lifeless things or material which has no life, but it is play as a subject or as a noun. So we will discuss all these four gender in detail. Okay, so let's begin from the beginning to end of this chapter. So see the line. Look at the following sentence. What it is written in this sentence? Pramod is a tall boy. Pramod is a tall boy. In this sentence, Pramod is a boy. So we are talking about a masculine gender called Pramod. Second sentence, Seema is a beautiful girl. In this sentence, Seema is a girl. It means we are talking about a feminine gender. It means Striling. The third sentence is she cuts an apple with the knife. Means here apple is non-living things and knife is also non-living thing. So apple and knife is a neuter gender. Now fourth sentence is a student should respect their teachers. In this sentence, a student and teacher, when we are talking and when we are saying a student and teacher, means we are talking about all a student. In a student, masculine will come and feminine will come. That means a student can be a girl or can a boy also. Same thing apply to teacher. In your school, okay, in Delhi public, there are teachers. Some teacher are woman and some teacher are male. That means some are, okay, woman and male. So this teacher word is come in the category of common gender. I hope you understand me what I said. Now let's overview little bit in Hindi. ध्यान देना। तो इस सेंटेंस का जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं वो था आपका, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या कहता है कि अ नाउन, ऐसा नाउन या ऐसा वर्ड दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल, मेन पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन या ऐसा शब्द जिससे मैस्कुलिन मीन्स पुल्लिंग की बारे में बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर जो स्त्रीलिंग के बारे में बात करें, जो गर्ल्स लोग के बारे में बात करें, ठीक है यार, आपका वुमेंस के बारे में बात करें, चाहे वो पर्सन हो चाहे एनिमल हो। एनिमल में जैसे मेयर मिस घोड़ी, बिच मिस, ठीक है, बिच, मेयर, हाँ, सी गोट, mistress, maid, queen, all are example of feminine gender. See, here is written now, girl, woman, aunt, cow, you, all are example of feminine gender. Now third is apple and knife. It is a lifeless object. So simply we can define a noun that is name of lifeless object is said to be neuter gender. जैसे पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल, मैगजीन. So I think you know very common thing.
maybe you know earlier also, but you need to practice it in your day-to-day life, okay? And you need to classify it, and then you will understand very clearly. I hope you understand it now. See, तो आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स. हाउ एंड विच वे वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन. इज देयर एनी रूल? यस, there are some rules. My dear students, you have to keep in mind this rule and regulation, and if you will recall this rule and regulation, you will never face any kind of problem. Okay, so let's begin the formation of feminine gender. So first of all, there are three ways of forming the feminine of nouns. एक noun के जितने भी words हैं उसको feminine बनाने का तीन तरीका. पहला, some feminine nouns are formed by a change of word. हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम वर्ड को चेंज कर देते हैं. क्या कर देते हैं? वर्ड को चेंज कर देते हैं. जैसे बॉय एक मैस्कुलिन है, गर्ल फेमिनिन हो जाएगा. ब्रदर मैस्कुलिन है, सिस्टर फेमिनिन हो गया. बुल सांड, ठीक है, मैस्कुलिन है. काव गाय फेमिनिन हो गया. कॉक मुर्गा एंड हैन मुर्गी फेमिनिन हो गया. हस्बैंड मैस्कुलिन है, वाइफ, ठीक है, पत्नी फेमिनिन हो गया. किंग राजा मैस्कुलिन है. क्वीन फेमिनिन है. लॉर्ड या जेंटलमैन मैस्कुलिन है. लेडी फेमिनिन है. मैन आपका मैस्कुलिन है. वुमन आपका फेमिनिन है. देखो और भी जितने वर्ड, डॉग मिस कुत्ता, बिच मिस कुतिया, ठीक है. डायरेक्ट एंड डक. डायरेक्ट मीन्स होता है आपका हंस बत्तकी, और डक मिस बतख. फादर मिस पिता, मदर मिस माता. ओके. फॉक्स, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, फैक्सन मतलब लोमड़ी का ही स्त्रीलिंग पुल. विजार्ड, यस मतलब जादूगर. विच मीन्स जादूगरनी. हॉर्स मतलब घोड़ा. मेयर मतलब घोड़ी. तो ये क्या है? इन सब चीज़ों को हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है चेंज करके, अलग अलग वर्ड रहते हैं, तो ये जानना है. दूसरा तरीका ये कि सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म बाय ई डबल एस टू मैस्कुलिन. मैस्कुलिन में ई और डबल एस को जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? फेमिनिन बनाते हैं. जैसे देख लो, ऑथर ऑथर इज, हेयर हेयर इज, हॉर्स होस्ट इज, लेपर्ड लेपर्ड इज, लायन लायन इज, मैनेजर मैनेजर इज, Viscountess, yes, priestess, all are example. अब आगे कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट में एक और थोड़ा ध्यान देना है चौथा में, कि ई एस तो ऐड करना है लेकिन लास्ट का जो वर्ड है उसको ड्रॉप करके. देखो, बट इन सम केसेस ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग. जो वॉवेल है उसको हटा दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया जाता है. ड्रॉप का मतलब हटा देना, उसके बाद ई डबल एस जोड़ा जाता है उस वर्ड को पहले लिख करके. जैसे देखो, EACTOR एक्टर. तो अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो इस ओ को यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद ये आर अटैच हो जाएगा टी के बाद, और ई डबल एस जोड़ देंगे. जैसे एक्टर एक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस. तो पढ़ना है. कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वर्ड के अंतर में जो आर आपका जो लास्ट वर्ड है आपका, है ना, उस वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? ओमिट कर दे रहे हैं. और ये ओमिट कौन कर रहे हैं? ये आपका वॉवेल लेटर, जितने भी वॉवेल लेटर आएंगे उसको ओमिट करेंगे और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. प्लीज़ ध्यान से पढ़ना बच्चे, ध्यान से पढ़ना, समझना है इसको, ठीक है. और हम एक एक करके एक एक पॉइंट को फिर से ब्लैक बोर्ड पे एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल से हम समझा देंगे, ठीक है. बाकी कोशिश करना अच्छे से समझने का, पढ़ना है किताब. जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा. अब आगे क्या लिखता है देखो. Some feminine nouns are formed by changing a word before or after in the masculine form as. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, और फेमिनिन बना दिया जाता है. जैसे ग्रैंड फादर, तो इसका फेमिनिन हो जाएगा ग्रैंड मदर. ग्रेट अंकल ग्रेट आंट. लैंडलॉर्ड लैंड लेडी. पीकॉक पी हैन. मेन सर्वेंट मेड सर्वेंट. बेली गॉट नैनी गॉट. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ए लाइक डैट. ओके, बहुत सारा वर्ड हैं जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं. कुछ ऐसे वर्ड हैं आप देखना है हम लोगों को. कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर तो पता है. न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग करेंगे. मेन होता है, अब तीन देखते हैं, कॉमन जेंडर,
मैस्कुलिन वर्ड, फेमिनिन वर्ड। जैसे अगर बोलते हैं कैचल, अब कैचल जो वर्ड है वो कॉमन वर्ड है। कैटल से मेरा दोनों पता चल जाता है, बुल के बारे में भी पता चलता है और काव के बारे में, मतलब सांड के बारे में भी और गाय के बारे में भी पता चलता है। डॉग से, ये कॉमन वर्ड है डॉग, डॉग हम बोल देते हैं तो दोनों को इंडिकेट करते हैं, डॉग को भी और बीच को भी। लेकिन अगर स्पेसिफाई करना हो तो फेमिनिन के लिए बीच वर्ड यूज करते हैं, मैस्कुलिन के लिए डॉग यूज करते हैं। डक, डक मतलब होता है बतख, तो बतख के लिए एक कॉमन वर्ड है, आप बतख दोनों के लिए कह सकती हो। लेकिन हमें ये करना है कि अगर मैस्कुलिन को स्पेसिफाई करना है तो हमें उसके लिए ड्रैक वर्ड का यूज करेंगे और फेमिनिन के लिए डक वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद है फॉल, फॉल मतलब होता है मुर्गा। अब मुर्गा का भी दो कैटेगरीज है, अगर मैस्कुलिन में स्पेसिफाई करेंगे तो उसके लिए कॉक वर्ड यूज करते हैं और मुर्गी के लिए वर्ड यूज करते हैं हैन। अब गॉट, गॉट मतलब अगर मैस्कुलिन के लिए करते हैं बैली गॉट या ही गॉट बोलते हैं और फेमिनिन के लिए नैनी गॉट या सी गॉट कहते हैं। गूज, ठीक है, अब गूज का एक होता है जेंडर, ठीक है, और गूस, ये इसका फेमिनिन और मैस्कुलिन है। एक एक करके पढ़ लेना, सब अच्छे से लिखा हुआ है देखो। तो ये था हमारा कॉमन जेंडर और उससे मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे बनते हैं। अब नीचे में एक प्रोनाउन का केस दिया गया है कि जेंडर बेसिस पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैस्कुलिन में जो सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के जगह पे सिंगुलर में ही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आपका मैस्कुलिन के लिए, लड़का के लिए वह के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, लड़की के लिए सी यूज करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ईट यूज करते हैं। और कॉमन तीनों के लिए, प्लूरल के केस में सबके लिए हम लोग दे यूज करेंगे। दे हम आपका मेल के लिए भी करेंगे, फीमेल के लिए भी दे कर सकते हैं और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी कह सकते हैं दे, ठीक है। तो ये कॉमन होता है। अब उसी तरह से सबके केस में अप्लाई हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में हिम यूज करेंगे, आपका फेमिनिन के लिए हर यूज करेंगे और न्यूट्रल के लिए इट यूज करेंगे और कॉमन में देम यूज करेंगे। उसी तरह पॉसेसिव केस में ही का हीज यूज करेंगे, सी का हर यूज करेंगे, इट का इट्स यूज करेंगे और देयर का दे का यस, देयर का दियर्स यूज करेंगे प्लूरल में। आगे लिखता है नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पर्सनल नाउन रेफरिंग जेंडर। अब नाउन को रेफर करते हुए जेंडर को बताते हैं। जैसे देखो लिखता है यहाँ माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो मेरा क्या है, बॉयस है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज किए हैं, ही वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में आ जाओ, आई हैव अ सिस्टर। अब देखो सिस्टर के लिए आपका सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव के केस में देखो हर यूज किया गया, लड़की के लिए यहाँ पे हर है ना, ये देख सकते हो फेमिनिन के कैटेगरीज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। माई आंट इज लैंड लेडी, तो आंट मेरा फेमिनिन है और इसीलिए इस लैंड लेडी के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हर्स यूज हुआ है, ठीक है। दिस फार्म हाउस इज हर्स, लाइक दैट। आवर अंकल हैज़ अ पैट डॉग। अब पैट यहाँ पे देखो आपका लिविंग थिंग्स है, डॉग के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं और ये जो है आपका डॉग, ठीक है। अब ये अंकल है, इसके लिए यहाँ पे ही वर्ड यूज किए। और दूसरा जो डॉग है, अब डॉग से कभी कभी जेंडर नहीं पता चलता है तो उसके लिए हम ईट वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ईट वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो डॉग के लिए कभी। 5 में कहता माई सन आर सिंसियर स्टूडेंट्स, दिस बुक्स आर दियर्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट प्लूरल्स है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में प्लूरल क्या हो जाएगा, दियर्स। आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लो मेरे बच्चे, चार्ट को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और चार्ट को पढ़ने के बाद अगर कहीं पे भी डाउट लगे, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, पूछना क्लास के अंदर या जब भी हमसे मिलो तब ज़रूर पूछना, हाँ डरना नहीं कोई भी पूछने से, ठीक है। ओके बाय, ओके हैव अ गुड डे, ओके। पढ़ो अच्छे से, समझो और इसको समझने पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद हम PDF भेज देंगे। उसके बाद एक एक को लिख करके हर एक वर्ड को लर्न करो, एक एक वर्ड को समझो कि किसका क्या फेमिनिन है, मैस्कुलिन का फेमिनिन कैसे बनता है। हम कभी भी किसी को भी एक एक रूल पूछ सकते हैं, इसीलिए अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए फिर से पूछना है, हम सबको बताने के लिए तैयार हैं। ओके बाय।